Hello everyone, my name is Ankit and I'm a student of the Bhumi IS. So today I just appeared in the exam of PCS and the analysis of the paper is so good. According to the paper, I just thought I have to consider in the basic information of the NCRT as we considered in the NCRT portions of the ecology and some of the small topics which I just covered in the polity. If you go through the schedules, there are some questions of regarding to the schedules, and from the current affairs we have 37 questions, as our director sir has said. Ki if you want to give your best performance in your exam, firstly you have to cover your basic knowledge, and the basic knowledge just covering from the NCRT. If the NCRT portion you have covered, you can easily think about all the portions of the topic in a single manner. So from that, you can easily go for the practice for the mains. And for today, as for the pre point of view, you have to read a daily newspaper. From that, you can easily get the current affairs belonging from the first, second, third, from the 3 month before. And according to the topic wise, if we cover up the history portion, so this is basically some of the topics are so important from the history portions, and means from the modern. And according to the polity point of view, you have to know all the connections between uh, the parliament and the president and the Lok Sabha and Rajya Sabha and all the amendments which are just considered in that form. And going from another topic which is just coming from the geography, so you have to focus on the basic portions of the physical geography. As today paper analysis, I have saw that many of the questions of the geography, which are just are so easy, but if you have some analysis on that topic, you can easily connect with them by their options. But it is the second part. The main function, you should improve your language. If you are giving your exam in the Hindi language or English language, first of all, you have the concentrate power that you can easily elaborate the single word of any options from the questions. Means if you talk about questions which are just coming in today paper, we have saw that if I have a good experience in my English communication, so I can easily know the answer if I have learned that topic in my mind. So that's all for today. And if I will give another exam, then I will tell what are the benefit improvement I have to do in my life. So until unless we meet in another video. Okay, thank you. गुड आफ्टरनून। मेरा नाम कार्तिकेय यश है। मैं भूमि आईएएस कोचिंग लखनऊ का स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पर यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ का आयोजन स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज फर्स्ट टेस्ट हुआ कंप्लीट हुआ है, जो अभी अभी खत्म हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था, वो क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट उसके जो ऑप्शंस थे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, जिससे लड़कों को या स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई है उनको सॉल्व करने में। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो करंट अफेयर्स को लेकर हुई है, और मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसी करंट अफेयर्स के पोर्शन पर करना है। थैंक यू। Good afternoon, everyone. My name is Anupriya Singh, and I am a student of Bhumi IAS Education since last 3 months. Just now, this prestigious institute has conducted the very first UPPSC Prelim 2022 test series. The question framework was very good. The most important thing that I have noticed is that the hard work that our Rudra sir has put in up. The answers were very tricky. The questions and answers were mind shivering. And the concept that I came to know after giving this test series, after giving that first test, in fact, every weekly test that is being conducted here after covering a weekly portion. I am talking about me since I was away from academics since last 6 to 7 years. I was busy in my practice. I have a medical background, and I was very uncertain about me if I will be able to
go back to academic or not. So for me, it was a really tough decision. And after coming here to in this prestigious institute, I gained confidence. And after giving so many tests, weekly tests, and in last 3 months, I have realized that hard work is the only key to success that our Rudra sir always says it. And talking about the test series and the first test that I have realized the main the preparation from the preparation strategy point of view, uh, the concept of learning should be changed. The mugging up pattern should be avoided. We should learn the basics and the concept of everything. If we learn the thing, and logical reasoning is required for answering any questions, just like a question was there in geography, what is ecosystem? I know the definition of ecosystem, but the choices are just like that. The mind was stormed ki either I should mark first or second or third, or last option was there ki neither of the above two. So at that point I realized ki we should change the concept of our learning basically. And as our sir says कि ज़्यादा हाई बुक्स नहीं चाहिए, we should go back to NCERT and current affairs also. हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी, मैं भूमि आईएएस की स्टूडेंट हूँ और आज हमारी कोचिंग में यूपी पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है और आज इस टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट था जो कि हो चुका है। और अगर इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसका लेवल बहुत ही अच्छा था। और इनके अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो जैसे यूपीएससी का लेवल होता है कि उनके ऑप्शंस का कि सारे ऑप्शन सिमिलर दिखते हैं, ठीक उसी तरह से जो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ थी उनके भी सारे ऑप्शन सिमिलर्स थे। इसके दो पोर्शन थे, एक था करंट और एक था ट्रेडिशनल। करंट पोर्शन में इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं करंट से अपडेटेड नहीं थी। और रही बात अगर ट्रेडिशनल पोर्शन की, तो ट्रेडिशनल पोर्शन कुछ हद तक मैंने पढ़ रखा था और काफ़ी चीज़ें कोचिंग में हमारी कवर कराई जा चुकी थी, जिसकी वजह से हमें मतलब मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो थैंक यू भूमि आईएएस एंड थैंक यू रुद्रा सर। Hello everyone, my name is Anjani Kumar Yadav. I am a student of Bhumi IAS, Lucknow, and today we have done the paper of UPSC PCS Pre 2022, and the paper which I can say from moderate to hard level, which are pretty much was tricky from in point of view of from options. Like in question of economy, there was some point like defining of cost recessions or some time of like 2022 economic surveys where some points were easy from which we know just on by surface to surface, but we don't know the current data. On the current data basis, like how much the economic data from how much it was more than the previous data of economic period 2021, like it was growth of 20% or 30%. And the most question which I found tricky was from geography, which was based on ecosystem definition. The definition was, I know the definition, but the option was so much interesting being tricked out that I was not able to get into the answer that I was at end I leave the question. And the last thing which I want to say is that polity, in which the question from the president, which I first taken wrong in my questions, and the second I take the right, but not in the MRQ. So take first in the question paper, then fill the jo hai OMR sheet. And last one portion which I will touch the history. In history, I was pretty much confident after reading the NCERTs and reading 1, 2, 3 books, but after a few times dealing with the questions, there was some thing of sort that I was missing some pinch of point, like not noting down them in a separate page and revising before the exams. That is a pretty much important thing. And the last, I would say you must attempt to more than 10 to 50 question papers before going to for the prelims exam, because they will give you an insights from where are you standing from mains point of view and to the end point of view. Because in mains we have just to write upon theories and we can make the answer upon here and there, but here
the tricky point is either you must tick one answer, either you are going to be out, because one right answer give you marks, and if you fail, it will cut down your previous questions marks. So we do on that work. I will also want to say that I will improve in my answer writing on current affairs also, because I cannot mix up the current from the traditional part of the portion of the questions, which was generally more tricky in this, because I was just dealing with how much balance was from 2022 and 2023. Because after seeing the video of the economic survey, still I was not able to crack the questions, because I have not noted down it anywhere, just I have seen it one go. That was my negligence, and thank you for this opportunity, sir, and I will make much more. हेलो, मैं सचिन भूमि आईएएस का स्टूडेंट हूँ। आज जैसा कि सबको पता है कि आज भूमि आईएएस में आईपीसीएस का टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, तो उसमें सभी को टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी टेस्ट देते रहें, और इससे हम लोगों की अच्छी प्रिपरेटिंग हो सकती है। और जैसा हो सके तो सब लोग ध्यान से उसमें ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दें, और अपना जून में पेपर भी है तो सब लोग तैयार रहें। थैंक यू। Good afternoon everyone, this is Chinmay Vaid. I am student of Bhumi IAS लखनऊ। आज यहाँ हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ का पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ का कंडक्ट हुई थी हमारे यहाँ पीसीएस की टेस्ट सीरीज़। सो बेसिकली क्वेश्चंस काफ़ी लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे, और कई क्वेश्चंस में हमें डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ी। ऑप्शंस जो थे उन क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी थे कई में, और कुछ में एलिमिनेशन मेथड लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा करंट पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो करंट को लेकर के और उसको जो डेटाज़ को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनके ऊपर मैं थोड़ा वर्क करूँगा। थैंक यू। हेलो, मैं बजरंग भूमि आईएएस का स्टूडेंट हूँ, और आज यूपी पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज़ शुरू हुआ है, उसको हमने दिया है, और उससे एक बात का पता चला कि हमारे जो क्वेश्चन के लेवल थे वो काफ़ी हद तक अच्छे थे, और उसमें जो करंट अफेयर्स था वो मेरे लिए टॉप था। बाकी क्योंकि मैं करंट अफेयर्स का अच्छा नॉलेज लिया नहीं था, और बाकी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन थे वो सही थे, लेकिन उनके ऑप्शंस काफ़ी नज़दीक वाले थे। चारों ऑप्शन में ऐसे सिमिलरिटीज़ थे कि लग ही नहीं रहा था कि कौन सा, सारे एक प्रकार से बोला जाए ना, जुड़वा लग रहे थे, लग रहा था दोनों सही हैं। और उसके बाद से लगा कि जैसे बेसिक नॉलेज जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जबकि हम लोग मेंस की तैयारी में केवल थ्योरी को ज़्यादा इम्प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बेसिक जो नॉलेज है, की पॉइंट्स हैं, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो आज के पेपर में बहुत अच्छे लेवल पे था ये बातें, तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा रहा, और आगे भी भूमि आईएएस के जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी अच्छे होते रहेंगे। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं बेसिक्स मेंस के तैयारी के साथ साथ बेसिक्स की भी अच्छी पकड़ बनाऊं, तभी यूपी पीसीएस और भूमि आईएएस के सहयोग से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू। Good afternoon everyone. This is Neeraj Chandra. Today I am discuss about the pre-test series which is started by the Bhumi IAS. आज की टेस्ट सीरीज़ में मैंने ये फेस किया कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप बोथ लैंग्वेज में अच्छे हैं, अगर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप हमको हिंदी में आ रहे होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में आ रहे होते हैं। अगर आप दोनों लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ के उसको डील कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, रियलाइज डैट करंट अफेयर्स
अगर आप करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ते हैं, मेन थिंग ये है कि अगर आप उसको वीकली और मंथली रिवाइज नहीं करेंगे तो आप करंट अफेयर को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। एंड एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तभी आप हर एक क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी, अगर एक भी टॉपिक आपका मिस हो गया तो उससे क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें डील नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि बस आप रेगुलर क्लास में बने रहिए और टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। Hello friends, my name is Anshu. I am a student of Bhumi IAS. आज जो हमारे कोचिंग में यूपीपीएससी की फर्स्ट प्री की क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने क्या कहते हैं अभी तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट हम कितना तैयार हुए हैं इस चीज़ को देखने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि लेवल जो है टेस्ट सीरीज़ का वो काफ़ी हद तक अच्छा था और इतना ज़्यादा टफ नहीं था बट इजी भी नहीं था। जिस हिसाब से हम चीज़ों को लेके चल रहे थे तो हमारी एक जो मतलब थिंकिंग थी कि जो है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन था उसमें। टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर्स क्वेश्चंस आए थे वो लगभग उस लेवल के थे। तो हमने अपने आप को उसमें टेस्ट किया कि हम एक्चुअली में कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जैसा कि मेरे साथ है कि मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से मुझे करंट अफेयर्स में थोड़ी दिक्कत आई। और जीएस में मेरा भी क्या कहते हैं जियोग्राफी का पोर्शन थोड़ा वीक है, तो इसकी वजह से जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी मुझे थोड़ी दिक्कत आई और जिस पे मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत भी है। तो जैसा कि अब ये सीरीज़ चलेगी टेस्ट सीरीज़, तो इसके तो क्या कहते हैं हम जो भी हमारी वीकनेस है उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। और थैंक यू भूमि IAS एंड थैंक यू रुद्र सर। मैं आंचल द्विवेदी भूमि IAS की स्टूडेंट हूँ और मैं लगातार पिछले कई महीनों से भूमि IAS में कोचिंग ले रही हूँ और धीरे धीरे मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। जैसे पहले हम लोग पढ़ाई तो करते थे, लेकिन कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ये उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे। बट कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। अब अगर हम लोग टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ हमारी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि हम पढ़ते तो लगातार जाते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, क्लासेस करते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, बट हम उस चीज़ को एनालाइज कैसे करेंगे कि हमने कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा। तो उसके लिए ज़रूरत होती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है जो भूमि IAS का एक अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। आज 13 मार्च को हमारी टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट था जिसमें सारे सेगमेंट आए हुए थे और उन सारे सेगमेंट्स के क्वेश्चंस को करते वक्त माइंड हमारा चारों डायरेक्शन में चल रहा था कि सारे सब्जेक्ट्स इंटरलिंक किए जा रहे थे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने जैसे 4-5 महीने से मैं लगातार क्लास कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे अगर मैंने क्लास नहीं की होती तो शायद वो मुझे और ज़्यादा परेशान करते, बट क्लास में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमें उस क्वेश्चंस को करने में थोड़ा आसानी हुई। और अगर बात करें क्वेश्चंस के लेवल की, तो क्वेश्चंस का लेवल एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। एज लाइक PCS एंड IAS में हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिले। जैसे कि 37 क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे। मेरा करंट अफेयर उतना ज़्यादा तैयार नहीं था, इस वजह से मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से टैकल नहीं कर पाई। एंड द सेकंड पोर्शन मेरा ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छे से नहीं तैयार था। तो मुझे इन 2 सेगमेंट्स पे आगे काम करने की ज़रूरत है और मैं आगे के टेस्ट्स में अच्छे से वर्क करके और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भूमि IAS एंड थैंक यू रुद्रा सर।